Hi guys, welcome to Manwad Education. In this video, we are going to discuss most expected GK and current affair questions. In this video series, we will discuss important GK question from polity for hotel management, NCHM, CT, JEE 2025 examination. Further parts will be coming up, so stay tuned on this channel and do subscribe for important updates and do like and share this video to those who are preparing for this examination so that they should also get benefit from this video. Let's get started. Before we start, in case if you want to join us for self-study program, you can visit our offline center, that is Vasai, Thane, Dadar, Borivali, Andheri, Pune. If you are not Mumbai or Pune based, then you can call on this number for online classes, live classes, and the counselor will guide you through. Yes, you can visit our website for online and self-study program. I will give you the tour guide of the website. So you have to visit mano.manwadedu.com. Here you will go to the buy courses, and here hotel management, here you have to go to hotel management, NCHM, CT, JEE. Here you will get all the details about the examination, about the courses, that is the self-study program, live classes, sectional, mock test, books, e-books. You can join relay live batch, crash course batch, S2C live batch. ये सारे जो है बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हो, मॉक टेस्ट अवेल कर सकते हो वेबसाइट पर जाकर. All the details mentioned in description box. Kindly check the description box. So let's start this session. And the first question is, in which of the following acts the provision was made for the establishment of Supreme Court at Calcutta? तो सबसे पहला जो है किस एक्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट जो है खोला गया था कलकत्ता में. किस एक्ट में ये कहा गया कि देयर टू एस्टैब्लिश सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता. रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833. एंड द करेक्ट आंसर इज रेगुलेटिंग एक्ट 1773. तो यहाँ पर जो है एक सुप्रीम कोर्ट जो है कलकत्ता में खोला गया. इन 1774 जो है सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ, एंड द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज दैट एलिजा एम्पे वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दैट सुप्रीम कोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच टाइम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में टोटल टाइम जो है वो कितना लगा था? 2 years 11 month 18 days, 2 years 7 month 23 days, 3 year 4 month 14 days, 3 year 11 month 5 days. एंड द करेक्ट आंसर इज 2 years 11 month एंड 18 days जो है टोटल ये है इसको टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कंसेप्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ. तो डीपीएसपी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ये हमने कहां से लिया है, किस कॉन्स्टिट्यूशन से जो हमने अडॉप्ट किया है? फ्रांस, आयरलैंड, जापान, यूएसएसआर. एंड द करेक्ट आंसर इज आयरलैंड. So the directive principle given in the constitution is taken from the Ireland, and that is mentioned in the part 4 of the Indian constitution में जो है आपको मिल जाएगा ये directive principle of state policy. Next question is, the word secular and socialist were added to the preamble of the Indian constitution by the secular and socialist word जो है preamble में ऐड किया गया, बाद में ऐड किया गया, और ये किस amendment से जो है वो ऐड किया गया था? 39th, 41, 42nd, 44th. एंड द करेक्ट आंसर इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से 3 वर्ड जो है वो ऐड किया गया. एक तो सेकुलर, दूसरा सोशलिस्ट, और तीसरा दैट इज इंटीग्रिटी वाज एडेड. सो प्रीएम्बल वाज अमेंडेड ओनली वन टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज. तो आर्टिकल 1 जो है इंडिया को कैसा डिस्क्राइब करता है? ग्रुप ऑफ स्टेट्स, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, द यूनियन ऑफ स्टेट्स. एंड द करेक्ट आंसर इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स. So according to Article 1 of the Indian Constitution, India, that is Bharat, shall be a union of state. तो इंडिया का दो ही नाम भी मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, एक तो इंडिया और दूसरा भारत. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू द सिटीजन्स? तो फंडामेंटल राइट का जो चैप्टर है वो किस आर्टिकल में मेंशन है इंडिया में? किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? There are total 6 fundamental rights in Indian Constitution mentioned in Part 3 of the Indian Constitution, and mentioned in which article? Article 112 to 115, 12 to 35, 222 to 235, none of these. And the correct answer is Article 12 to 35. Part 3, Article 12 to 35 of the Constitution enumerates 6 fundamental rights which are provided to the citizen of India. एज वेल एज द सिटी आउट जो है इंडिया के सिटीजन नहीं है उनको भी बहुत सारी राइट जो है वो मिली हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ चिल्ड्रेन? तो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ चिल्ड्रेन की बात जो है वो किस आर्टिकल में आपको, किस फंडामेंटल राइट में जो है आपको देखने को मिलेगा? आर्टिकल 17, 19, 23, 24. एंड द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 24.
सो इसमें मेंशन है कि नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और इंगेज्ड इन अदर हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट, सच प्रोहिबिशन इज एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। तो ये किसी भी बच्चे को जो है जो 14 साल से छोटे हैं वो हजार्डस कंपनी वगैरह में कहीं भी ऐसा जगह काम नहीं कर सकते हैं। ये चीज जो है आपको मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 24 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर व्हाट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी हैज बीन अबोलिश्ड। तो ये जो अनटचेबिलिटी है उसको किस आर्टिकल से जो है वो खत्म किया गया, किस आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 14, 21, 17, 19 and the correct answer is article 17. So article 17 abolishes untouchability and declare that its practice in any form is prohibited. तो किसी भी फॉर्म में जो है आप इसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी के बारे में मेंशन है। आर्टिकल 18 में जो है वो टाइटल्स के बारे में मेंशन है कि टाइटल्स जो है आप नहीं रख सकते हो, कुछ भी एकेडमिक टाइटल को छोड़कर, बाकी जो है आप कोई भी टाइटल ऐसे नहीं ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें से कौन जो है डीपीएसपी का पार्ट है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, फ्रीडम ऑफ द रिलीजन, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। एंड द करेक्ट आंसर इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो आर्टिकल 44 में जो है आपको यूसीसी के बारे में मेंशन है। बाकी ये तीनों जो है दीज आर द फंडामेंटल राइट है और ये जो है डीपीएसपी है, यूसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो टोटल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये बाद में ऐड किए गए हैं, और टोटल अभी जो है प्रेजेंट में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? 9, 11, 12, 20 एंड द करेक्ट आंसर इज 11. So there are 11 fundamental duties mentioned in the part 4 of the Indian Constitution, और जो ओरिजिनली था वो 10 था टोटल, बाद में एक और ऐड किया गया दैट इज थ्रू द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, और राइट टू एजुकेशन जो है वो ऐड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू whom does the president of India address his resignation। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? स्पीकर ऑफ द लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एंड द करेक्ट आंसर इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट को जो है प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देते हैं, और जो ओथ जो लेते हैं वो चीफ जस्टिस के सामने लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय। तो वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन करता है? हम लोग करते हैं द पीपल, द इलेक्टोरल कॉलेज व्हिच इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं वो, द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, द स्टेट लेजिस्लेचर। एंड द करेक्ट आंसर इज द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ये आर्टिकल 66 में जो है आपको मेंशन है कि दोनों हाउस में जितने भी मेंबर हैं वो वोट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा। एंड द करेक्ट आंसर इज वाइस प्रेसिडेंट। सो राज्यसभा जो है वो प्रिसाइड करते हैं वाइस प्रेसिडेंट, एंड ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। जो भी वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? राज्यसभा के चेयरमैन भी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड। अटॉर्नी जनरल इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया एंड हु अपॉइंट्स हिम? by the parliament, by the president on the recommendation of the parliament, by the chief justice, and the correct answer is by the president. So article 76 में जो है अटॉर्नी जनरल के बारे में मेंशन है, and he was appointed by the president of India. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। कैग जो है वो आर्टिकल 148 में मेंशन है, और इसको अपॉइंट जो है वो कौन करते हैं? जो भी गवर्नमेंट का इनकम एक्सपेंडिचर है उसको ऑडिट जो है कैग करता है। प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस मिनिस्टर, एंड द करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट. So article 148 clause 1 of the Indian constitution says that there shall be CAG of India and who shall be appointed by the president. Next question is what is the minimum age laid down for a person to seek election to the Lok Sabha? तो लोकसभा में जो है इलेक्शन लड़ने के लिए आपका एज कम से कम कितना होना चाहिए? 18 years, 21 years, 25 year, 35 year, एंड द करेक्ट आंसर इज 25 years जो है आपका एज होना चाहिए लोकसभा के लिए, और 30 year जो है वो होना चाहिए राज्यसभा के लिए। प्रेसिडेंट वगैरह के लिए 35 years ऑफ एज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज। तो पहली फीमेल स्पीकर जो है लोकसभा की कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, तारकेश्वरी सिन्हा, मीरा कुमार, एंड द करेक्ट आंसर इज मीरा कुमार। और ये जो है 2009 से लेकर 2014 तक जो है आपको लोकसभा की स्पीकर रही थी मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा इज। तो राज्यसभा में प्रेसिडेंट जो है कितने मेंबर को नॉमिनेट करते हैं? 10, 15, 12, 20, एंड द करेक्ट आंसर इज 12.
So according to Article 80, the President may nominate 12 persons in Rajya Sabha belonging to the area of literature, science, art and social service. जैसे कि अभी जो है सुधा मूर्ति को भी जो है राज्यसभा के मेंबर बनाया है, तो वो क्या है, दैट इज शी इज द अपॉइंटेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेटेड इन इंडिया. जो सुप्रीम कोर्ट आप देखते हो इसका इनॉग्रेशन जो है आफ्टर द इंडिपेंडेंस कब हुआ था. 27 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1950, 30 जनवरी 1950. एंड द करेक्ट आंसर इज 28 जनवरी 1950 जो है इसका जो है सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ था. और ये सुप्रीम कोर्ट जो है पहले फेडरल कोर्ट था, दैट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1937 में जो है ये बना था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एज ऑफ रिटायरमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट इज. तो सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो रिटायर कितनी एज पर होते हैं. 62 ईयर्स, 63 ईयर्स, 64 ईयर्स, 65 ईयर्स. एंड द करेक्ट आंसर इज 65 ईयर्स. और यहीं पर हाई कोर्ट के जो जज हैं उनका रिटायरमेंट का एज जो है वो है 62 ईयर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय. तो जो स्टेट में गवर्नर है उनका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं. प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट, द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट. एंड द करेक्ट आंसर इज द प्रेसिडेंट. सो द गवर्नर इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. और आर्टिकल 157 में जो है वो मेंशन है गवर्नर के बारे में. जो भी 35 ईयर के एज के होंगे इंडियन सिटीजन उनको जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द गिवन अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेड टू द बिगिनिंग ऑफ द पंचायती राज इन इंडिया. तो पंचायती राज सिस्टम जो है इंडिया में किस अमेंडमेंट से जो है वो स्टार्ट हुआ था. 73rd, 64th, 62nd, 69th. एंड द करेक्ट आंसर इज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है 1992 में, जिसमें पंचायती राज जो है वो ऐड किया गया, लोकल गवर्नमेंट. और 74th से जो है आपको म्युनिसिपल जो है वो कॉर्पोरेशन ऐड किया गया था, अर्बन लोकल बॉडीज. एंड द करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which constitutional amendment is relevant to the goods and service tax. तो GST जो है वो किस अमेंडमेंट से इंक्लूड किया गया है. 99th, 100th, 101, 102. एंड द करेक्ट आंसर इज 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016. और ये जो है GST जो है आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया, दैट इज आर्टिकल 279A में जो है आपको कॉन्स्टिट्यूशन में GST के बारे में मेंशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग. तो पार्लियामेंट जो है वो किससे बना हुआ है हमारा. प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव. एंड द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी. सो द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज कंपोज्ड ऑफ द प्रेसिडेंट, द लोकसभा एंड द राज्यसभा, एंड प्रेसिडेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. तो पहले इलेक्शन कमिश्नर जो है इंडिया के कौन थे. इलेक्शन कमिश्नर इज मेंशन इन आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और सबसे पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे. डॉक्टर नगेंद्र सिंह, SP सेन वर्मा, VKB सुंदरम, सुकुमार सेन. एंड द करेक्ट आंसर इज सुकुमार सेन जो है वो पहला इलेक्शन जब हुआ था 1950, 51, 52 में, तो ये सुकुमार सेन ही जो है वो क्या थे, इलेक्शन कमिश्नर थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट एंजॉयज द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया. तो पहला लिंग्विस्टिक स्टेट जो है इंडिया में कौन बना. लैंग्वेज के बेसिस पे जो है स्टेट सबसे पहला कौन था. आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु. एंड द करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश इज द फर्स्ट क्रिएटेड लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया फॉर तेलुगु स्पीकिंग पीपल. और ये कब बना था. 1 अक्टूबर 1953 को जो है आंध्र प्रदेश बना था. उसके बाद जो है बाकी स्टेट फिर रीऑर्गेनाइजेशन आया 1956 में, तो अदर स्टेट को भी बनाया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ. तो प्रेसिडेंट को हटाना जो है ये किस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है. प्रेसिडेंट को हटाने का जो प्रोसीजर है वो कहां से लिया है. UK, US, फ्रांस, USSR. एंड द करेक्ट आंसर इज US. सो the features are fundamental right, independence of judiciary, impeachment of the president. These all are taken from the constitution of US. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वीमेन गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन फ्री इंडिया. तो सबसे पहली जो है वीमेन गवर्नर कौन थी आपको इंडिपेंडेंट इंडिया की. इंदिरा गांधी, विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी. एंड द करेक्ट आंसर इज मिसेस सरोजनी नायडू. और ये जो है आपको उत्तर प्रदेश की गवर्नर जो है बनी थी सरोजनी नायडू, फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वीमेन जज टू बी अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट. तो पहली वीमेन जज जो है सुप्रीम कोर्ट में कौन बनी थी. लीला सेठ, अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा, रानी जेठमलानी, फातिमा बीबी. एंड द करेक्ट आंसर इज फातिमा बीबी. सो फातिमा बीबी इज द फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड to the Apex Court in 1989 and she became the first female judge to be part of the Supreme Court of India. अब इनका डेथ हो चुका है इसलिए इंपॉर्टेंट है, इनका नाम को याद रखिएगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग। तो कोई भी देश बनता है तो उससे पहले क्या है, उसका झंडा डिजाइन किया जाता है, फ्लैग डिजाइन किया जाता है। और ये जो है आपको हमारा जो है फ्लैग को, नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किस दिन किया गया था? 22 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 22 जनवरी 1947, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1948 एंड द करेक्ट आंसर इज 22 जुलाई 1947। और इसके जो है हेड कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जो है इस कमेटी को हेड कर रहे थे। सो दीज आर ऑल फॉर टुडे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सेशन वेल। Still you have any doubt, write in the comment section and do like and share this video and stay tuned with us for further videos. All the best. Thank you.